here like this, and I will say that we're going to learn about the typography, and there are many more things which we learn in a Bootstrap. One of them is the typography. Okay, so basically in our Bootstrap, for everything we have the classes. For everything we have what? The classes, and we need to remember those classes. For example, if I say here, for example, I say h1 and put up content in some, say, heading heading. Okay, should have done it actually. So 1 2 3 4 5 6. This is my h2. This is gonna be h3. This is gonna be h4. This is my h5. This is my h6. Okay, sorry, h5 and h6. Now this is my heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, 5, and 6. Now if I give it a go, okay, now here we are in this. So this is my heading 1 2 3 4 5 6. But if I do one thing, if I actually minimize it a little bit and then go smaller, it will have no effect because the font size will remain same. As you could see here, if I say inspect, let me hide this. Okay, now if we change the screen size here, okay, and let me see the style. In the styles we have the font size. Let's say font size. Let me select firstly the h1, for example. Okay, the font size here is 2M. What is it M? I will talk about it. So font size is 2M. Okay, and computed, if we say computed here and I say font size, this one, that's 32 pixel. Now if I, what is the M and all, we'll talk about it. But if I change it, okay, it's still staying 32 pixel all the time because it's not responsive. The basic HTML tags, they are non-responsive, but if we make it like, if we link it with our CSS file, we say link :CSS, and in the style we got the bootstrap.min.css जो कल हमने की थी ना इसमें, याद है? Yes, sir. Now if I do, there will be totally different fonts. Now as you could see, font size is 40 pixels, and if you say style and you say font size, it is now 2.5 m. Heading 1 is 2.5 m, as you could see here, 2.5 rem. It's not m, it's now rem. Okay, and if I say here the computed, and I see the font size, that's gonna be 40 pixels. Now if I make it smaller, okay, now you're seeing the font is also getting smaller. See, look at here on the font size, can you see that the font is also getting smaller? Even I'm making very smaller, okay, it is still skewing it. You see, it's, if you're heading Yes, it is skewing it to a level that has become 22.75 pixel only. And if we say it's style and I say the font size, that's gonna be calculated 1.37 rem. So what is that? We will see that rem and m, but firstly I'm seeing that this is responsive. Now for the headings, we can have a lot of heading styles, like we have the class names like h1 to h6. We have class name like display 1 to display 6 and so on. But first of all, we need to know about this rem and m and all that. Okay, the fonts, we need to know about this. I think we have not we should have done it before, but I think I have forgot it. Anyways, we'll start it here. Okay,
When we talk about the font, we got the pixel. We can have the unit as a pixel. We can have unit as percent. We can have unit as point. Okay. Now, if you say point and pixel, they are fixed. They are what? They are fixed. They are constant. They will stay like that. What is that? I will talk about a little bit. Pixel we have already done. Then we got a VW, viewport width. We got viewport height. We got RAM, and we got M. Okay. What is this M, RAM, VH, VW, percent, pixel, point, and all? The first of all, the pixel. If we talk about the pixel, it is actually 1 by, I think it is 1 by 96. Yes, it is 1 by 96 of an inch. And if it is a point, it is 1 by, I guess it is 70 something, 72 of an inch. Yeah, 1 by 72 of an inch is the point. Means it's a little bigger. Point is a little bigger than the pixel. Pixel a little smaller because denominator has 96, so bigger number denominator means smaller number. So pixel is a little smaller. If we see in the inches, okay, this is equal to 0.26. I mean mm. If we talk in mm, it's 0.26 mm of the. That means we have a cube of 0.26 mm on this side and 0.26 mm on this side, height, and that means the cube. Okay, but in case of a point, it is 0.35 mm. That means point is having a space of 0.3 mm on width and the height. Okay, and pixel is 1 by 90. That means inch. If it is an inch, if this is 1 inch, if we part 96 हिस्से हम इसको करेंगे, जो last part 96th वाला हिस्सा होगा, that is the pixel. That small unit is called pixel. देखिए pixel अगर मैंने कहा for example 20 pixel, okay, it is 20 pixel means some, say for example this, if I say for example 1 kg, I will tell you by मेरे पास जो weight है वो 1 kg है. Now wherever you go, or I'm saying that my length of my pen is 20 centimeter, for example. Now no matter wherever I go to the office, I go to the moon, I go to somewhere, the length of my pen will stay as 20 centimeter. It won't change. Same as the pixels. If I say 20 pixel, it means the particular length, this much. Okay, that is 0.26 mm of length and breadth. This is the pixel. So it will stay like that. Whether the device is bigger or whether the device is smaller, it doesn't matter. That is why pixel is not a good choice to use if we have want to have a responsive design. Now then there is a percent also. Percent does what? Percent is which talks about the what percentage of the parent. We are not talking about the, these are called as the relative fonts. These are called as what? Relative fonts. Where we have the M, we have the RAM, even we have the percent. These are all relative fonts. What does it mean? Let us try to visualize it a little bit with an example. Okay. Let me close this for a while. Okay. Let me create here. Say for example, I created some parent and child. I can say dot parent. I got dot parent as a div, and inside I got a dot child as my div. And child I will write is there's a child in it. Okay, whatever. Now I got the parent and the child. The child div is inside the parent div, right? Now I create one style file here. Maybe I say style.css, and index 2 I will link it with the link colon style file and style.css is linked already. Okay, now in the style.css I will catch the head. I will catch that parent. सर आपने style.css वो style folder के बाहर ही बनाई? यहाँ बनाई ना मैंने. ये style folder के बाहर है? स्टाइल फोल्डर के बाहर है. हाँ, अच्छा ठीक. तो वो बनानी चाहिए, यहीं पे बनानी चाहिए हमें. अच्छा ठीक है ना, इसी में बन रखेंगे इसको.
Just move it. स्टाइल को ना I will move it in the style folder. Okay, it should be क्योंकि style folder है ना already यहाँ पे, तो style और CSS should be in it. ठीक है? And now we have to make a little change in our index2.html because now this is not here, it is in the style folder. Huh? In style folder there is style.css. I have to link it with that. Okay. Okay. For a while I will close this one because they confuse that. Now I got a parent. Okay. I got the parent and I got a child. Two divs. This child div is inside the parent div. You know, समझे? As simple as it is. Now what I will do is I will say dot parent कि भैया जो मेरा पेरेंट है उसके अंदर, ठीक है, जो मेरा, क्योंकि मैंने क्लास नेम रखा कि मैंने क्या रखा इसको, इंडेक्स 2 में क्लास नेम रखा ना, हाँ, डॉट पेरेंट PARENT. सो स्टाइल को मैं क्या करूँगा, मैं, हाँ जी, मैं डॉट पेरेंट बताऊँगा कि पेरेंट को मैं स्टाइल दूंगा कुछ. मैं पेरेंट को क्या कहूँगा, भैया तू पहले बॉर्डर दे दे ताकि दिखेगा हमें. बॉर्डर इज़ 1 पिक्सल सॉलिड maybe black. और इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर, let me give it, say for example red. The background color is red. Okay, now if I see here, now I got the, this is my parent and उसका बैकग्राउंड कलर रेड आ गया, उसका ब्लैक आ गया ये, और ऑल दैट. लेकिन अब चाइल्ड जो है वो इसके ऊपर उसको तो हमने बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसका वो टेक्स्ट दिख रहा है जो चाइल्ड का टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे चाइल्ड में जो टेक्स्ट दिया, दैट्स कॉल्ड चाइल्ड, हमने रखा ना नाम इसका. ओके, Yes, sir. वो तो है, लेकिन अब मैं चाइल्ड को भी करूँगा डॉट चाइल्ड. मैं चाइल्ड को स्टाइल करूँगा डॉट चाइल्ड. आई विल स्टाइल चाइल्ड. मैं इसको कहूँगा कि भैया इसका बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप येलो कर दो, व्हाटएवर, जो भी कोई भी कलर येलो कर दो, ठीक है. अब देखोगे कि रेड गायब हो गया. क्यों हो गया रेड गायब? रेड उधर ही है, वो इसके नीचे है क्योंकि चाइल्ड इसके ऊपर बैठा है ना. यस सर, तो ओवरटेक कर दिया सर. चाइल्ड ने पेरेंट को हाइड कर दिया. लेकिन अब अगर मैं चाइल्ड को बोलूँगा कि भैया जो इसकी विड्थ है, इसकी क्या है, विड्थ जो है, let it be 50%. Let it be what? So what will be 50% of? That 50% of parent. It will be 50% of what? देखो अब मैंने 85% रखा ना चाइल्ड को, तो पीछे वाला रेड वो दिख रहा है, पेरेंट दिख रहा है, ठीक है. If I say 20%, अब 20% किसका बनाएगा? पेरेंट का. 30% किसका बनेगा? पेरेंट. ये पेरेंट का बनेगा. अगर पेरेंट खुद ही, मैं कहूँगा पेरेंट की खुद की विड्थ जो है ना, दैट इज से 70%. तो फिर 70 का 30 लेगा. वेरी गुड. क्योंकि मगर ये खुद किसका 70% होगा? इट विल बी 70% ऑफ द बॉडी. हु इज द पेरेंट ऑफ द, हु इज द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड. पेरेंट का पेरेंट कौन है? पेरेंट का पेरेंट ही है. नहीं, बॉडी है. बॉडी है सर. बॉडी है, तो ये बॉडी का जो विड्थ होगी उसका 70% लेगा. राइट सर. और चाइल्ड जो है वो इस 70% का 30% लेगा, यानी कि इस 70% का 30% जो आएगा वो लेगा. ये फर्ज मैं इसको कहूँगा 50%. अब इस 70% का जो बराबर नेसब होगा ये वहाँ पे आएगा, राइट. सर. So person always talks about what? The child and the parent. बस हो जाए कि पेरेंट क्या आपको है, उस हिसाब से आपका ये चलेगा. बात समझ आई? सर. Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास और भी फॉन्ट्स हैं. मैंने कहा हमारे पास पॉइंट भी है, पिक्सल भी है, परसेंट तो हो गया, हमारे पास रेम है, एम है. अब वो क्या चीज़ें हैं वो भी हम समझ लेते हैं पहले. फिलहाल मैं index.html में एक काम करूँगा. index.html में आई विल सिंपली डिलीट दिस, ठीक है. ओके, बॉडी भी डिलीट किया. बॉडी भी डिलीट की मैंने, सॉरी. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, आई विल यूज द p tag. I will use a p tag with an hash id of say for example I say pixel. Firstly I say what? Pixel. बन गया ना, id इसका pixel बन गया. पेजेस क्या आ गए लैपटॉप के नीचे गर्मियों से. ओके, id is equal to pixel. ठीक, तो इसमें मैं कहूँगा कि
भैया जो पिक्सल है आपका दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 96th ऑफ एन इंच। इंच, याद आपको रखना। और इसी के साथ मेरे को कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, मैं कहूँगा भैया ये मेरा पॉइंट है, POINT पॉइंट, इसको मैं स्टाइल करूँगा दैट इज पॉइंट रखा है कितना है 1/72 ऑफ एन इंच। 72 आगस ये लेखन टेक्स्ट ये टेक्स्ट चलेगा आप पे फर्क है कहीं पे ना सुकूता गो इज इक्वल अगर मैं इज इक्वल सुकूता और अगर ये आसान mm 0.25 0.25 0.26 mm you go the shows 0.35 0.35 mm 0.35 mm which is equal to हुआ याद? ओके नाउ इन्फिनाइट में स्टाइल दिखाने बात है हम करें क्या करें सर मुझे is equal to लगाऊं मस का हाँ जी is equal to मस लगाऊं मस का या शो टेक्स्ट या तान खतरे हैं शो पानी खतरे शो मतलब मा करी कहाँ चीज टेक्स्ट ही थे पट मगर वहाँ ये पता स्पॉट दिमोश ती गई इनकी अगर वो स्टाइलस मस गछ ब करन ये पिक्सल तो पॉइंट करन ब ये ती छन में जरूरत क्या है करन ये पिक्सल कितने करो ना आईडी हैश पिक्सल पिक्सल 1 पे अगर मैं पिक्सल्स ना करूँ पिक्सल क्या मैं करूँ एमएस दून फॉन्ट दून पिक्सल्स ठीक है मतलब फॉन्ट साइज क्या था पिक्सल दून फॉन्ट साइज था अब क्या लिख रहा हूँ फॉन्ट साइज से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल दूँ ये बराबर अल्टीमेटली 20 पिक्सल ठीक है अगर 20 पिक्सल में पिक्सल्स ये 20 पिक्सल में साइज चाहे स्क्रीन लॉकआउट है बोर्ड है तभी पे इनमें फर्क नहीं यदि हमेशा एमएस क्या 20 पिक्सल चाहे खबर क्या थी किस ठीक है लेट मी मेक इट बिगर लेट मी इंस्पेक्ट में ही देखेंगे युस ऐसे बॉडी में ये इकोरस बंदी युस ऐसे p टैग ना पिक्सल बोल it will be its font size will be what computer will show us font size it's going to be 20 pixels है ना वजन करिए लॉकआउट बोर्ड में भी ना फर्क है इसमें हमेशा 20 पिक्सल है तो पिक्सल इज ऑलवेज कांस्टेंट समझे ना yes sir okay now what about the point मतलब हम point hash point मतलब खुद पॉइंट ही ना होता तो ना यार आईडी को ही ना पद कर भी इमेज कर भी पॉइंट विदिन पॉइंटर में इमेज ये साइज select font size is control C command V font size this is a 20 point pt क्या से हमको थोड़ा बड़ी पाऊँ है ना yes sir अच्छा समझिए ना yes अगर भी सिलेक्ट करनी पॉइंट वो और ना मैं उसमें font size 26.667 जो हमको थोड़ा अलावा ही पाऊँ ठीक जो कंप्यूटराइज yes sir अगर स्टाइलस में शो इस फॉन्ट साइज दैट इज 20 पॉइंट्स है ना ठीक है मगर कंप्यूटर में कड़ने कंप्यूट पर कोता छुए सो पिक्सेल्स में करी कन्वर्ट पॉइंट करी कन्वर्ट का मस पिक्सेल्स समझाय म ब्यागो रैम ते एम इस एम छ आसा इट्स अगेन रिलेटिव फॉन्ट एम छ अगेन व्हाट रिलेटिव फॉन्ट ये छो ना इसमें पेरेंट छुई तन हिसाब पकाई पे यानी कि इसमें पेरेंट आए अगर मैं पेरेंट छुई थे which for example इसमें पेरेंट से फॉर एग्जांपल इसमें पेरेंट ठीक क्या मत बनाओ मैं p टैग इसी p टैग छ अगर मैं सब 2m हमें मतलब गो 2m मतलब गो ये पेरेंट्स फॉन्ट छु ता दिस इज सर्विस अब 3m था ये पेरेंट्स फॉन्ट छु ता दिस सर्विस 3 Just the name such relative. You don't make a relative fonts. RAM तो छुट्टे पड़ काम करना. RAM तो शोना बाया ये से parents ऐसी तीत है मगर इसमें हमारे immediate parents क्या? इसमें हमारे ancestors ने HTML ये HTML as font ये क्या मिस font HTML
तमी हिसाब पे यानी कि अख रैम गो बराबर ये HTML फॉन्ट है HTML सान डिफॉल्ट फॉन्ट 16 पिक्सल ये थे अख 16 पिक्सल ठीक है मगर अगर बह कुछ 1 रैम थाव या 2 रैम थाव बह 2 रैम मतलब गो फिलहाल 32 पिक्सल क्या मे 10 पिक्सल HTML फॉन्ट ये दी तमिस जरबे 2 गो ना 10 16 2 गो ना 30 10 गए ना 32 पिक्सल वन जन कर बह HTML सी फॉन्ट बह थमिस 20 पिक्सल रैम कूता वन 2 रैम कूता वन 40 पिक्सल अगर 1 रैम था सह ती फॉन्ट ये HTML अगर 20 पिक्सल 1 रैम गो 20 पिक्सल 2 रैम गो अमुक जरबे 2 3 रैम गो अमुक जरबे 3 एम करान इमीडिएट यूज अमिस यह क्या पेरेंट फॉर एग्जांपल अगर ये करो पन्निस इंडेक्स HTML अगर इंडेक्स HTML मज काम करो अस बनाओ ये गोड पेरेंट बनाओ फॉर एग्जांपल हेडर ठीक है हेडर टैग बनाओ थो पेरेंट ठीक अत मज कर काम अत मज बनाओ 2 p टैग हैश से फॉर एग्जांपल m ठीक है so 1m कूत वन सा is equal to parent font parent आसस ती ना yes sir immediate parent मगर यूज अगर वही रैम ये तमिस ना रैम कूत HTML font root equal to the root font ये root font और HTML ना root तो HTML tag root अगर ये HTML tag root की ये tag ये root tag तो अंदर सोरी yes sir अगर सी ती रोजी अमिस फॉन्ट अगर इसी करो इसमें स्टाइलस मज करो इसे अमिस ये कारखान m दर m करो इसे इसमें हैश m तब क्या था इस फॉन्ट साइज तब से फॉन्ट फॉन्ट font साइज 1m था ना कूता गई ठीक इथे पे था इस कुछ ऐसे हैश और ये तब कोई फॉन्ट साइज तब 1 रैम फिलहाल तो उसमें ना मत करो चेंज हेडर को देना सर हेडर ना जो फॉन्ट इसमें हैश को जो ना हेडर से हैश हेडर तमी हिसाब है ना ये JDR हेडर्स जो इस फॉन्ट साइज हम इस फॉन्ट साइज से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल हार्ड फॉन्ट से हम इस तो हेडर्स 20 पिक्सल वो m कोता नहीं चलता ना वही अगर जब वन m s कोता है फॉन्ट हम रैम कोता है m को होगा सर 20 m को होगा 20 क्योंकि वो इमीडिएट हेडर जो इसका पेरेंट है उसी का लेता है रैम कोता है Sure, because we take off the HTML. Let us see it. दूसरा ऐसे which heavy is yes sir सर हेडर से आईडी नहीं दिया था शायद अच्छा तुझे हेड रही है ठीक मैं अगर इस विषय वार रही थी इस ऐसा अगर m कुछ ये पॉइंट है ये ना हेडर गया ठीक है हेडर्स को द शेस फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स ना ऐसे फॉन्ट साइज होता यस सर अगर इसमें मुझे यूसेज आत्मज ये छु यूसेज आत्मज बाय m दी को तनी को ना असम 1m अगर भी कंप्यूट करन कंप्यूटर बराबर थी ये हेडर साइज ना 20 पिक्सल गया 20 पिक्सल यस सर तो अगर भी रैम निमन रैम उसको तो फॉन्ट साइज रैम उसमें निमन फॉन्ट साइज 20 उसमें 16 है गोस ना जो स्टाइल में जो फॉन्ट साइज 1 रैम मगर इसको था गड़बड़ करूंगा इसको था गड़बड़ करूं चोट नहीं क्या था
hash rem. Font size is equal to 1 rem, space length. Okay. आओ ना मैं 1 rem छना क्या compute को ताइस Yes, sir. मुझे शुरा pixel 16 pixel. ये 16 pixel क्या है इसमें HTML का default. कैसे कि HTML शो ये अगर मैं HTML font ही कर change तो भाई भाई इसमें HTML शो इसका ना तो आक्षेप करूँ तमिस font size था उससे तमिस say 20 pixel तो अगर मैं HTML शो font size 20 pixel वन से MS पे फर्क क्या MS पे फर्क रैम MS को ऐसे पे फर्क एम तो हमेशा लेता है Parent HTML immediate. M देता है immediate Headers. parent. MS शो वास्ते ये मिस headers से हेडर से अगर बता मिस 2M थी तब 2 RAM वन से में अपनी font size M को तक करी calculate तो RAM को तक करी calculate तो दाएं करंट जीते कुछ Sure. हाँ सर क्योंकि हमने अभी HTML को 40 रखा और हेडर का भी 20 HTML सॉरी size 30 20 HTML size 30 differentiate करने को तो अभी लेगा M को सर तक RAM लेगा 60 एमएस नहीं 40 40 हाँ RAM नहीं 60 सॉरी 60 RAM नहीं 60 अगर जो RAM ठीक है font size 60 pixel चुना चीज़ समझ नहीं गई क्या है कि चोर HTML change font थ्रू ज़रबिज़ ना 60 pixel आना है क्या यस सर उस M चुस कुता ऐसे सर वो होगा 40 अगर स्टाइल में ऐसे लिखित 2M ना अगर कोई ये मिस विच स्टाइलस में एम साइज लिखित 2 RAM मगर कंप्यूटर में जो कैलकुलेट कुदा करो कैलकुलेट करो 60 पिक्सल क्या जी एम जो रूटस सर्विस द रूटस वो ये यानी कि HTML यू ओस तक सर्विस पता है समझ यस सर ऐसे को ब्याख चीज तक ब्याख आसान यथ मज कांस्टेंट इस्तेमाल कर फॉर एग्जांपल दिम HTML जुन छु में एमएस कर बंद गने HTML यूज में छु बकर एमस काम अख चीज बिदिम एमस फॉन्ट साइज XX large अच्छे ज कांस्टेंट अख स्मॉल बे छु लार्ज ये तो और एमस लार्ज बताऊं तो शुरा डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या होस शुरा अगर हम कहीं लिखिए डिफॉल्ट शुरा वो सुथई हमिस 2M RAM को तो पता है 2 RAM अतस 1 RAM नहीं ना शुरू है तेले यस सर आपने शुरू है क्या ऐसे इधर से मुझे बकना कम बताओ मिस नाच कर फॉन्ट साइज अख चीज कम कर मिस XX लार्ज आसान 2 पिक्सल लार्ज क्या आसान 2 ये बनाए मिस 2 पिक्सल फॉन्ट साइज समझाइए मैं केम्स बना 2 पिक्सल थोड़ा 1 RAM में हाँ अगर बकर कम अख चीज बहके मिस XX स्मॉल ती बनित स्मॉलस मज नेरान 9 पिक्सल वो MC रूट एमस HTML रूट गना लापट वारिया करी यस सर 9 पिक्सल रूट ये HTML बहकी ती XX स्मॉल XX लार्ज तो इत पड़ वुछ ऐसे कि फॉन्ट हेको अस या इस्तेमाल कर पिक्सल उसको हेको कर फॉन्ट इस्तेमाल समझे पिक्सल पॉइंट RAM percent we can use we can use RAM then but is viewport height the viewport width viewport height and viewport width for example what would be after viewport को total display area इसमें वो होते वायरलेट है ना parent child से जुड़े थी पत कर वो बांध आपने कंट्रोल / बॉडी टैग भी बंद हुआ dot parent मतलब पता हम इसका dot child इसलिए कहाँ चीज़ child तो देखकर अब इस body बंद इसे parent क्या है child ठीक मगर वो parent child style
background yellow कर ये बंद तलिम तराउन parent child yellow और वो parent इस थाउन border अख pixel ये ना इसी आवना इस क्या इसी ठीक है Yes, sir. मैं कर बकूम अख चीज दम से बाय इस parent शो ना तमिस कर से काम अख चीज दम से width this तमिस क्या for example 100 VW hide this HIGHT hide this 100 VH viewport height ठीक है ये करी in the full screen the time it's a padding if you the side is no because of padding asan so natural padding so और इस asan अगर मैं खत्म से करें तो करो इसको ऑप्शंस इस करो स्टार पैडिंग क्या था इस 0 मार्जिन क्या था 0 हमारा ठीक फुल मतलब ना मत उस गैप है कहीं साइड तो पेरेंटल नोट फुल व्यू पोर्ट हाइट तो व्यू पोर्ट विड्थ इसको मगर चाइल्ड इसको तो ऐसे 50% of the discrepancy, sir. मींस क्या हो ओके इस करो ये काम इसी चाइल्ड शो इस्तेमाल इस कर सा आप चीज काम इसका विड्थ 50 VW the height था से 50 VH कौन सा क्या गैस हाफ आएगा सर हाँ रोड ना हाफ विड्थ इसे सिग्नल VH मतलब वो स्क्रीन हिसाब ठीक है VW को स्क्रीन हिसाब इस बड़े सारी fonts ठीक मैं पकाऊँ इसको उस पकाऊँ इसे यार पड़े इसको हम कराएं इसी तरह उसमें बंदी स्टाइल HTML2 करो बंदी HTML1 इस पड़े इस वापस ठीक है कर भी डिस्पोज ऑफ because HTML2 सुनते बला HTML पन्नीस HTML ठीक है क्या है यार वैसे चुरा तो कुछ है Yes, sir. ना ऐसे एक पढ़ो इसका काम आप चीज़ इतना वैसे याला तो हेडिंग चाहिए तो हेडिंग पहले 1 2 3 ना सिस्टम काम था और डिस्पोज ऑफ इसका अपन वो लाएंगे ओके आता है वो क्या या ये करो इस बंद इसमें से वीडियो थी ओके आई ना सेटिंग इशू मतलब इस लिंक याले इस बंद इस तरह में बूटस्ट्रैप सेसेस छोड़ेंगे हम तो अब आप देखोगे इसमें अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे तो इसको अब आपको समझ आएगा कि जैसे इस तरह से लॉकड बोर्ड जो करान if we see the style firstly इस इनसुल font size is should heading मस्त करो choose का heading heading मतलब क्या body मस्त करो choose का heading 1 करो choose ठीक है तो इस कोता font size show calculated show इस ये computer show कोता का font size इस font size ठीक है 40 पिक्सल करूँ कैलकुलेट है ठीक ये पाका चुस ब्रो ये गसान काम छ ना Yes, sir. आपसे समझ जाओ मगर स्टाइलस में कोता छमिस स्टाइलस में छमिस 2.5 रैम छमिस क्या छमिस 2.5 डाई रैम 2.5. गो अगर रैम छ मगर ये गस मगर ब्रेक पॉइंट हिसाब से ब्रेक पॉइंट थमी छ तम हिसाब गस चेंज ये कोड ये सोरी कोड लिखित हुई अशन तस सन अच्छा ब्रेक पॉइंट हिसाब गस ना ये रोज डाई पत क्या ठीक है इल्बुल लॉकड कर ठीक क्या कैलकुलेट कराए क्या यस सर वही 1.7 1.1 1.375 है ऑलमोस्ट डाई 2.5 और 1.37 ये करना पन फॉन्ट साइज दी चेंज मगर इतना कसा एज पर द ब्रेक पॉइंट चेंज
तो आसना मीडिया करी हुत लेखित कति CSS तो आज file में bootstrap min.css आशन तसन कहीं ये कर पाने युता फॉन्ट ये मैं गस लाकुट ये गस असल पड़ गसान तत एडजस्ट मुझे मा मैं फॉर एग्जांपल इधन मैं लुक हेडिंग में लुक में तो मैं लुक इधन जूर पान क्या फॉर एग्जांपल लोअर में लुक में कि ठीक है ये भी सुविधा है होता है आत्मस सुना होता है कि आत्मस होता है असल पड़ उस कराए लाकुट ठीक है आज फॉन्ट साइज गसान पाने लाकुट उदा 0.5 रैम ना कम गसान फॉन्ट साइज yes sir स्क्रीन साइज करा फॉन्ट साइज तुझ गसान कम उदा स्क्रीन साइज बोल्ड करा फॉन्ट साइज तुझ गसान छ इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकिंग पॉइंट्स वन छ में जरूरत कि मे बे के हेडिंग्स क्या छ में अस त्रे किस्म हेडिंग आसान आइते अगर डिस्प्ले हेडिंग्स बेगे H1 क्लासेस तो इजन इस हेडिंग क्लासेस छ ऐसे तथ में छ ऐसे मतलब इसमें p टैग फॉर एग्जांपल ठीक जुस मैं मतलब फॉन्ट साइज ना कर पानी हिसाब कर बे यमिस लेख ब क्लास ठीक यमिस लेख ब H1 क्या लिखस H1 you go heading 1 paragraph अब कंट्रोल ऑप्शन डाउन करो 2 3 4 5 6 you go by मैंने H2 you go H3 you go H4 you go H5 क्या लग रहा है कंट्रोल से you go H5 ठीक you go H6 okay extra ठीक you say H1 H2 H3 H4 H5 यम छ पान क्लासेस यमन आस पान फॉन्ट हिसाब किताब ठीक अगर तुझे की आना डिफरेंट तुम निश हेडिंग निश yes sir अगर बह यह कर चूज ये H1 अत पन फॉन्ट साइज 2 रैम अगर बह H2 वुचन अत 2 रैम H3 वुचन अत 1.75 H4 1.5 रैम क्या कर आर मीन्स रूट ठीक है HTML से करना ये अत 1.5 या रैम वोत ना 6 पे यानी कि डिफरेंट फॉन्ट्स दिवान पता ये अगर बह छोट झूट कर तम हिसाब गो पता यह चेंज रोज सेम मतलब यह 2M ठीक है पता कर बह कम एंड सो ऑन यह कैलकुलेट कर बह कम ग एज पर द स्क्रीन साइज पता समझ गए ऐसे हेडिंग्स पैराग्राफ हेडिंग्स ठीक है ब्याक तथ डिस्प्ले हेडिंग्स क्या display headings say for example we name H1 tag in for example we name H1 tag dot display 1 ठीक तो मैं ऐसा शुभ है display headings you go by display 1 and पर भी यम ती 6 1 2 3 4 5 6 also now display 2 because now display 3 because now is class name or which define gets yes sir 5 display 6 if you go 2 you go 3 you go 4 you go 5 you go 6 ठीक है तो check him अब ना तू ये का फर्क पान में इसका थोड़ी हटाओ इसलिए H1 is still heading 1 है ओके इसकी समझ कैसे करें वैसे यम फर्क पान यम थोड़ा स्पेशी यम दूर बोड़ पम रास कम खो ठीक डिस्प्ले हेडिंग वारिया बड़ लगन हीरो सेक्शन बनावनस बात समझ yes sir तम पे ब्याक लीड मे पैराग्राफ इधन फॉर एग्जांपल मे पैराग्राफ इधन ठीक अमिस था बह नाव लोरम त्रव अत मज लोरम लगन लोरम अत मज यथ कर बह यथ मज थब क्लास थब अमिस नाव लीड क्या थस नाव lead हाँ ओके तो ब्याक चीज ब्लॉक कोड्स क्या वन block code block codes I should basically tag the block code we have in our HTML5 block code tag you know block code you should block code tag pan मगर अगर मैं एम्स कर स्टाइल यथ मज फॉर एग्जांपल यह कर p tag कर
अपने को क्या शुभाया this is ये छु block code ये सब साल कर भी थी उससे या अब ये तो block code आवाज tag मगर अथान style कहीं के style छत पे वहाँ कारुन दिलास block code छु semantic tag मतलब कि header छु semantic tag ठीक है और समझ क्या करा Yes sir. No sir. वहाँ header से पर style दूँ इतने पर छु block code छु semantic tag या छु block code खुद मगर अच्छा ना पर style दूँ मगर अशु bootstrap बस अति style आत अति style अति नसी इसलिए को class name आत अशु class ऐसे block code ठीक है इसमें block code लगाओ ये बनी block code आवाज समझ या आपने block code थोड़ा bold पहमाओ ना ये रास्ता बहुत ही बड़ा है. हाँ ये छु lead इसमें छु ये font अलग पहम font कुम खुद इसमें paragraph आसान छु normal font तम खुद थोड़ा different पहम हम चाहिए माँ ये lead हटावियत तो छु ये HTML paragraph छु ये में आई छु ना Yes sir. मगर अगर अभी ये lead दें वापस इस थोड़ा text लिखा मोट हम भी साफ पहम छु ना font आना बाग font family आना different ये यस सर ओके पता करना है इसमें पता होना है इस एप्लीकेशन में करना है इस्तेमाल पत अब से समझ देखो जो फॉन्ट वेट है बेश ऐसे लाइन हाइट में गोलो पूरा ह्योर बन गए मतलब मैं फॉर एग्जांपल इतना सन मैं फॉर एग्जांपल न्यू पैराग्राफ टैग ठीक है जिसे हम आम लिखूं बोल्ड टेक्स्ट क्या ऐसा लिखूं जो बोल्ड टेक्स्ट तो अत खतर में क्लास FW font weight bold इथे पे ऐसे ब्याक छ M खुद बोल्ड गो बोल्डर गो ना तथ यह बोल्डर ठीक है मतलब यह बोल्डर टेक्स्ट ओके इथे पे ब्याक चीज तथ वन सेमी बोल्ड क्या वन सेमी बोल्ड ब्याक छ मीडियम ब्याक नॉर्मल ब्याक लाइट गो पत तो बे लाइटर बोल्ड तो बोल्ड आव ना बोल्ड आव ठीक बोल्ड पर क्या उनमें सेमी बोल्ड मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज का कर इस्तेमाल गो सेमी बोल्ड पत ऐसे जनाबी मन मीडियम पत ऐसे नॉर्मल अब ना यह गो नॉर्मल आसान नॉर्मल बोन क्या इस पता छोट आइस बिल्कुल लाइट आइस बोल्ड को उल्टो ये गो लाइटर ठीक है ये देखो इसमें लाइटर LIGHTER ये LIGHT लाइट ये नॉर्मल ये मीडियम ये सेमी बोल्ड है ये बोल्डर listen what is that boundary वैसे या बोल्ड टेक्स्ट या एम खुद बोल्ड या हल्क बोल्ड या मीडियम या नॉर्मल या लाइट या बिल्कुल लाइट है तो ये बस बिल्कुल छोट लास्ट सुना सर यस सर Yes sir. अगर इस आप चीज करो ना वहाँ ऐसी सर एक क्लास हम किसी भी टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ क्लास ये मिस आज ते मिस आज करते मिस ती करे ना ना फॉन्ट करा चेंज फॉन्ट्स क्या है लिखित फॉन्ट साइज एंड बेस बे बनावा ये अब लाइट बोल्ड वगैरह ना ठीक अच्छा देखिए मैंने पे आज क्या मैंने पे लाइन हाइट से समझ गया सर बेस तो वाले इटैलिक चला साइज से ओके अगर इटैलिक टेक्स्ट है Yes sir. control option down arrow italic text essentially this is tough as normal यानी कि you go italic अच्छा इसमें font style italic ना ये तो कोई font style
ये at मुझ font style मतलब normal सा क्या italic से text ये normal style ये normal font style तो ये italic font style है इस करो इस्तेमाल बूटस्ट्रैप तो इस पर क्यों ही करो इस्तेमाल को इटैलिक थी को नॉर्मल अब आज कितना गड़बड़ को थोड़ा ये आओ कहता हूँ अच्छा क्लास में को ये तो ठीक है सर अब ये थोड़ा और बाकी इसको होता है और या नॉर्मल या इटैलिक अब यस सर अगर we करें तो हम actual दिखलाए थे style कर भी create inline style है अगर भी या internal style I give star padding है 30% ये ऊपर पंखा इसे ये मस्त अब normal font style को italic ये को lighter text वगैरह हाँ अच्छा इस line height क्या है line height line height में उसको समझे ऐसे height करो इस line ही है मतलब बना p tag आ बना बात इस थब lorem trava demands ठीक इस थब line height ps दिन class name line height क्या दिमास line height 1 ये बटे line height small base तो large ठीक है ये करो copy control option down arrow so मसा line height go 1 go small go क्या होना base base पर go large LG इसमें आवाज़ मिसे ऐसा नहीं line height बिल्कुल की अच्छा बिल्कुल line की है that's a line height smallest you say base you normal इसे आसान छो इसे large अब बनी double line height मंज़ बगाए ना yes sir अच्छा समझो इतने पर ऐसे typography मंज़ ये भी ऐसे last aspect लोग माँ text align the transform अगर ऐसे करना है text align ऐसे करूँ text transform ऐसे करना अगर ऐसे capital बनाऊँ small बनाऊँ चुना बनाऊँ अच्छा ना text transform चाहो ना yes sir इस बनाओ p tag ठीक है आज करो इसे lower case बनाओ इस गो lower case क्या गो ई class था उस अच्छा क्या सुना class उसना text lower case है text lower case ठीक है control option down arrow ज़िद्द त्रे अगर lower case बागो upper case क्या गो upper case बाकी सुना capitalize ना सा पहला word capital सोच ले कोई दिन थे capitalize ठीक है सही को लोअर केस होगा अपर केस है ना सॉरी ऐसा कोई लेटर सी आवती है स्मॉल गुड सो स्मॉल यूज तुम सॉरी yes sir अब ना ये यू गोना कैपिटलाइज व्हाट्स टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है लास्ट स्पेस करो इस आज दैट इज एनफ फॉर टुडे दैट विल बी टेक्स्ट अलाइनमेंट दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी कि जो सन टेक्स्ट स्टार्ट पे थाउन एंड पे थाउन ठीक है सेंटर पे थाउन ओके अगर पता स्क्रीन हिसाब से अगर स्मॉल स्क्रीन तम किस एंडस पे था अगर मीडियम स्क्रीन अगर लार्ज स्क्रीन अगर एक्सेल क्या कर ठीक है
यानी कि अस बनाओ p टैग ये थाओ इस कथ स्टार्ट स्टार्ट alignment text ठीक है मगर on all viewports क्या कि ये शुनु हम viewport हिसाब क्या ये चल हर viewports पर थी सेम अब पे फर्क कहीं class text start for example text start यानी कि ये था ये स्टार्टस पे चाहे व्यू पोर्ट इस्तेमाल कहाँ थी ये था ये स्टार एंडस पे क्या था मिस या सेंटर द मिस था ये सेंटर पे CNTER सेकंड RER ये था मिस पाथ पे टेक्स्ट एंडस पे And you go end you go mid you go center हाँ चाहे पर व्यू पोर्ट कहाँ थी इसमें अब ना या स्टार्टस पे या मिडस पे या एंडस पे अब टेक्स्ट yes, अगर sir. कभी ये छोड़ जूट कर भी ये इंस्पेक्ट ठीक करें लाकुट या बोर्ड एमसी पे फर्क कहीं नहीं भाई कुछ एंडस पे ही मास बाग तो कुछ ये पे ना Right. एम मजीद छ ऐसे ये मैं काम छ करन कत पे यम जन ऐसे व्यू पोर्ट हिसाब करन ठीक है यानी कि अगर स्मॉल व्यू पोर्ट छ तमिज गस में गसुन मसला अगर पी टैग इधन ठीक एमस थव ब क्लास मैं अजी बंद Provider. हाँ ना तो शुभ ना मिशन बेसिकली उसमें सुबह स्टोरी बेच पाते उस थोड़ा वो हाफ एन आवर निंदर करा मगर आज करने में ये है ओके ये करो शब्द वो वंती बस टाइपोग्राफी मकला एक चीज आदम अशीम चोर ना आथिम एंड मैं व्यू पोर्ट हिसाब आसन टेक्स्ट या एंड करना ऐसे मगर ऐसे करो व्यू पोर्ट हिसाब क्या मिसाल मतलब इसमें बताओ टेक्स्ट एंड पर मगर व्यू Report, sir. उसमें तो अगर टेक्स्ट कर से मगर था से ये अगर से ये स्मॉल स्क्रीन क्या छी अगर स्मॉल स्क्रीन छी ठीक है तिल था से एंडस पे ठीक है था से एंडस पे ठीक है स्मॉल स्क्रीन टेक्स्ट ऑन एंड ज़त सोर आवा ब्याक तो मिस बाया अगर से मीडियम स्क्रीन क्या छी सुना एमडी Medium. एक मिनट से रहा थे Yes, sir. MD. मीडियम स्क्रीन मज कर सो बाया से एंडस पे क्या गो LG मनमोहन सिंह ना मनोज Sos गुजरो sos मुंह you go Excel hein you go Excel એટલે કે Excel इंग्लिश लैंग्वेज को मनमोहन सिंह को की देख तो मनमोहन सिंह क्या कहस कौन सा इमकार गसन इमचना से फिलहाल छी एंडस पर सरी है Break point. हाँ पगना ब्रो वो होती तो एक्सेल स्क्रीन होता है एकदम Yes, इसका sir. वो भी एक्सेल वो तो हो होता है गेम तो ना इंडिया लाई ठीक है वो इंगे चल स्मॉल स्क्रीन आओ इंगे सरी बिगिनिंग एस्पेक्ट ये रूद में एंड एस्पेक्ट ये रूद नॉर्मल यानी कि यम करन एंड तेली ये लीवन ये ब्रेक पॉइंट आज नहीं की ना लेस देन अगर ये ब्रेक पॉइंट की यू ब्रेक पॉइंट ये यम हटन एम निश मतलब यम रोजन एंड की है ठीक है रोजन बिगिनिंग पन्ने नॉर्मल उसे पे यानी कि यम रोजन फिलहाल एंड सारी तम स्क्रीन यून ब्रेक पॉइंट छुन की है ना पत यु पको ब्रो ब्रो अख वासी ना मीडियम स्क्रीन वात फिलहाल लार्ज मीडियम स्क्रीन वो खुद उस अब खसे ब्याक स्क्रीन वोल ठीक है ये पता नहीं क्या वो था पत वो स्मॉल स्क्रीन वोल
उतना स्मॉल स्क्रीन बोलते हो रही क्या Yes, sir. रूट में एंडस पर थी हैं अच्छा समझ में और डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन साइज शुड द बकायम था पता क्या है कि इसके टाइम पर करो इसको इस विषय में क्यों मतलब नजर इस का टेक्स्ट हाइड करो मतलब मैं ऐसे था नहीं मैं ऐसे मिशी हम टेक्स्ट बनाया था मुझ यू चुने में हाँ उन मोबाइल पर ही किसकी हैं it have a point wise क्या जाए समझ पता कैसे सु ब्रेक पॉइंट्स पे कैसे गब गसु यानी कि डिस्प्ले पुश तम सु नन गसु यानी कि पोजीशनिंग जन चाहिए चेस पर मुझे ना पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट स्टिकी वगैरह वगैरह तुम सारी चीजें इसमें पागा ठीक है सर ये आपने सामने से एंड स्पेट टेक्स्ट ब्रेक पॉइंट ऐसे कोई सर बड़े थे तो पता कोई एंड स्पेट ब्रेक पॉइंट एंड स्पेट टेक्स्ट बराबर हाँ ठीक है I'm cool to tell सर ठीक है पगह पर इंशाल्लाह बाकी हाँ बाकी को मुझे एच बंद ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम करियो सर आराम सर अस्सलाम वालेकुम Once